Hello and welcome. My name is Abhinandan Singh, and I will be your physics teacher for this session. And I'm a 2016 graduate from IIT BHU Varanasi, where I was awarded the IIT Color Award. And I'm also a KVPY scholar, and I've been teaching physics for past 5 years to IIT JEE and NEET aspirants. And apart from physics and mathematics, I am quite passionate about fine arts and football. And according to me, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo are two different entities, so please do not compare them and do not ask me to pick one. Both of them are great. And people usually ask me that why did I end up teaching? So according to me, the best way to understand anything is to start teaching it. When I started teaching, I realized the immense depth of this subject of physics and mathematics. And I've been doing so for the past 5 years and I'm loving it. So let us start with the session. And इस session में मैं आपसे discuss करना चाहूँगा about this specific problem. It states that we have to calculate the instantaneous rate of change. By instantaneous rate of change, I mean the derivative. We know that derivative is also called the instantaneous rate of change, and the derivative has to be with respect to time. ये किस चीज का derivative है? This is derivative of a vector. A vector which has constant magnitude. ठीक है, इस vector का constant magnitude है and is rotating with an angular velocity of omega. The vector is rotating at an angular velocity of omega. So what I can infer is that इस vector का magnitude constant है but direction constant नहीं है. Why is the direction not constant? Because it is rotating with an angular velocity of omega. So the vector keeps rotating, it keeps rotating, it keeps rotating, right? What we have to do, we have to calculate the instantaneous rate of change, right? Diagrammatically इस question को approach करते हैं. So let me write the answer. मैं ऐसा देखता हूं कि अगर vector की position ये है, this is the position of vector, this is the initial position of the vector. Let us call the vector as a vector, और vector का जो initial magnitude है, let us call it a, and this a, the magnitude of the vector is going to be constant. And मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा मेरा अजम्पशन है. और अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो ओमेगा है वो ओमेगा राइट हैंड थंब रूल से आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा. वी ऑल नो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल. सो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज आउट ऑफ द स्क्रीन. एंड हमने डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे कैलकुलेट की? हमने डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैलकुलेट की बाय राइट हैंड थंब रूल. तो इस एरो को मैं डॉटेड बना देता हूं. इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है बट एक्चुअल डायरेक्शन इज, वी ऑल नो व्हाट द एक्चुअल डायरेक्शन इज. तो मैं ऐसा मानता हूं किसी भी टी टाइम पे वेक्टर ऐसा है, तो टी टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम बीतेगा, वेक्टर घूमेगा, थोड़ा सा और टाइम बीतेगा, वेक्टर और घूमेगा, थोड़ा सा और टाइम बीतेगा, वेक्टर और घूमेगा, राइट? लेट अस से थोड़े से इंटरवल के बाद, आफ्टर अ वेरी स्मॉल इंटरवल, वेक्टर अपनी फाइनल ओरिएंटेशन में आ जाता है. मैंने कितना टाइम बीतने दिया? ये जो ऑरेंज वाली ओरिएंटेशन है, ये ऑरेंज वाली ओरिएंटेशन है आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt. तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि वेक्टर को घूमने के लिए मैंने एक फाइनाइट टाइम इंटरवल दिया है या एक नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम इंटरवल दिया है. वेक्टर को घूमने के लिए मैंने एक नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम इंटरवल दिया. कितना नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम इंटरवल? dt. ठीक है. तो द पिंक पोजीशन ऑफ वेक्टर इज द इनिशियल पोजीशन, द ऑरेंज पोजीशन ऑफ द वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन. एंड अगर मैं पूछूं फाइनली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी a रहने वाला है. एंड why is it so? Because it is given in the question, it is given in the problem statement that the vector has a constant magnitude, right? अब इसमें इस नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम इंटरवल में आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट दिस. दिस इज व्हाट? दिस इज instantaneous rate of change. ये किसका instantaneous rate of change है? This is instantaneous rate of change of a vector with respect to what? With respect to time. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो a वेक्टर का instantaneous rate of change कैलकुलेट किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है, we all know. And
अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दिस इज डी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी वेक्टर। मैं पूछता हूं कि what do you mean by dA vector? By dA vector, you mean small change. Small change in what? Small change in A vector. Delta A vector is change in A vector, a finite change maybe, and dA is a very small, negligibly small change in A vector. क्या A vector actually change कर रहा है? हाँ, A vector change कर रहा है। A vector कैसे change कर रहा है? A vector का magnitude तो fixed है। A vector का magnitude fixed है, but A vector की direction change कर रही है because it is rotating. It is given that it is rotating with an angular velocity of omega, right? तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज कर रही है। That means vector change कर रहा है because vector has two properties, magnitude and direction, and we all know that if the direction of a vector changes, the vector itself as a whole changes. तो dA by dt कैलकुलेट करना है। इस dA by dt में न्यूमरेटर dA क्या है? स्मॉल चेंज इन द वेक्टर, एंड इसके डिनोमिनेटर में ये dt क्या है? dt है स्मॉल टाइम इलैप्स्ड, टाइम इंटरवल जो बीत गया, जो टाइम इंटरवल बीत गया है। टाइम इंटरवल क्यों बीता? अरे टाइम इंटरवल बीता जिस टाइम इंटरवल में वेक्टर चेंज किया। तो dt टाइम इंटरवल में वेक्टर dA अमाउंट से चेंज किया, उस dA को dt से डिवाइड कर लो। अब मुद्दे की बात है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज चेंज इन व्हाट? चेंज इन वेक्टर। तो न्यूमरेटर इटसेल्फ इज अ वेक्टर। न्यूमरेटर इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्यों? क्योंकि भाई किसी भी वेक्टर का चेंज वेक्टर ही होता है। वेक्टर का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर विल गिव यू द स्मॉल चेंज इन वेक्टर, एंड दैट स्मॉल चेंज विल हैव अ मैग्नीट्यूड, एंड दैट स्मॉल चेंज विल हैव अ डायरेक्शन। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट कि भाई इस वेक्टर का स्मॉल चेंज कितना है। लेट मी कॉपी दिस डायग्राम। Right. So what we have to calculate? We have to calculate the small change in A vector, which is basically final minus initial. किसी भी चीज का चेंज निकालना होता है तो फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी सबट्रैक्ट कर देते हो, एंड दैट गिव्स यू द चेंज इन दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी। इस केस में दैट क्वांटिटी इज वेक्टर। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से this is what? This is initial vector with its direction reversed, because in vectors negative sign means reversing the direction. तो मैंने क्या किया? मैंने इस डायग्राम को फिर से कॉपी कर लिया, एंड अब मैं क्या करता है? अब मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। सबको देख रहा है कि मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मैं वेक्टर बनाएगा, जो मैं लाइन बनाएगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बहुत सिंपल, दिस विल गिव यू डी ए वेक्टर। और आपको पता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि हमने नेग्लिजिबल टाइम दिया था रोटेट होने के लिए। अगर रोटेट होने के लिए नेग्लिजिबल टाइम दिया था तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय नेग्लिजिबल टाइम। दिस इज बेसिक सर्कुलर मोशन व्हिच यू ऑल नो, राइट? सो मैं ऐसा मान सकता हूं, मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं दैट दिस एंगल and this angle, these two angles are approximately 90 degree. These two angles are not exactly 90 degree, but these two angles are approximately 90 degree. Why these two angles are approximately 90 degree? ये एंगल negligible है, tending to zero है, not exactly equal to zero but tending to zero. and ये पूरा का पूरा ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, बिकॉज ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लेंथ्स की हैं। The initial and final vector have equal magnitude because the magnitude of the vector is constant. And these two angles in white, the angles that I have marked in white, they have to be equal because equilateral triangle. And you do the mathematics, अगर ये चीज जीरो है तो ये दोनों एंगल्स अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के होने वाले हैं। तो एक बात तो बहुत एविडेंट है, द स्मॉल चेंज इन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इटसेल्फ। जो वेक्टर का स्मॉल चेंज आएगा वो असली वेक्टर जो ए आई वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर होने वाला है। तो मैं डीए के बारे में क्या लिख सकता हूं? मैं डीए के बारे में लिख सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल चेंज, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल चेंज इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इटसेल्फ, राइट? अगर मैं डीए के मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करता हूं, मैं डीए के मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करता हूं, तो व्हाट डू आई सी?
I see a thin isosceles triangle जिसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल d थीटा है. इस वाली साइड की लेंथ कितनी है, इस वाली साइड की लेंथ a है, बिकॉज दिस वाज बेसिकली AF फाइनल वेक्टर. इसमें इस वाली साइड की लेंथ कितनी है, इस वाली साइड की लेंथ भी a है, बिकॉज दिस वाज बेसिकली AI वेक्टर. और इसमें ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे? यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल d थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल d थीटा बाय 2 हो जाएगा. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस DA. ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप इस DA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट बिकम्स 2a sin of d theta by 2. And since d theta is very small, so d theta by 2 is also very small. Sine of a very small angle is equal to that small angle. Sin theta is equal to theta when theta tends to 0. Mathematics में ये भी आपने पढ़ा हुआ है. So it becomes 2a d theta by 2, which becomes a d theta. तो a d theta और d theta को आप क्या लिख सकते हो, d theta को आप लिख सकते हो omega dt, because as we know that small angle rotated in a very small time is omega into dt. So हमने क्या किया, हमने जो चेंज इन वेक्टर है, जो स्मॉल चेंज इन वेक्टर है, स्मॉल चेंज इन वेक्टर के बारे में हमने क्या बता दिया, हमने स्मॉल चेंज इन वेक्टर के बारे में उसका डायरेक्शन भी बता दिया, ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया. यार कुछ लोग ना इस चीज को डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं कि दे एज्यूम दैट देयर इज अ सर्कल, और उस सर्कल की आर्क लेंथ अप्रोक्सीमेटली डीए के बराबर हो जाती है. एंड आर्क लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस इनटू द एंगल. तो r d थीटा वेयर r इज इक्वल टू a, बिकॉज दिस da इज वेरी स्मॉल. तो छोटी सी आर्क लेंथ ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, सर्कल सेंटर्ड एट दिस स्टार वाला पॉइंट, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो. सो व्हाट यू हैड टू कैलकुलेट dA वेक्टर बाय dt. dA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज a d थीटा एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस d थीटा को आप लिख सकते हैं ओमेगा का मैग्नीट्यूड इनटू d3. Therefore, the instantaneous rate of change of the vector A is equal to A into omega into dt divided by dt. इसके साथ इसकी डायरेक्शन लिख देता हूं. डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल वेक्टर एंड इट बिकम्स a omega magnitude of that vector multiplied by magnitude of angular velocity of the vector, and direction is perpendicular to the vector. So मैं बहुत बेसिक चीज लिख सकता हूं. The instantaneous rate of change of a vector having constant magnitude which is rotating at some angular velocity is equal to, हमें instantaneous rate of change लिखना है एक ऐसे वेक्टर का जिसका constant magnitude है और जो रोटेट कर रहा है, which is rotating at a constant angular velocity. इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर. दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज गोइंग टू बी perpendicular to the vector itself. ठीक है भाई. तो आज के बाद कभी आपसे पूछे कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर जो रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेटिंग वेक्टर विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट वेक्टर एट दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. और उसके रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. सो इफ वी हैव अ वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इसका जो ओमेगा है ऐसे बाहर को है,
तो इस वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होने वाला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, और जो रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड है, इस रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, जो कि बेसिक कंसेप्ट तो नहीं है, बहुत अच्छा और यूनिक कंसेप्ट है, जिसको आप सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और बहुत जगह लगा सकते हो। आप सर्कुलर मोशन में इसमें जर्क कैलकुलेट करने के लिए इस चीज को लगा सकते हो। तो कुछ कुछ जगहें हैं जेईई एडवांस और नीट में जहां पे ये चीज पूछी जाती है आपसे, और अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट याद रहता है तो इट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। दीज आर द थिंग्स जो शॉर्टकट्स होते हैं, दीज आर द थिंग्स जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जिसको इफ यू कैन रिमेंबर दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आई होप आपको इस सेशन में सब चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज फील फ्री टू रीच मी। थैंक यू वेरी मच।